Okay, so chemical property number 2. Chemical property number 2. Right, and what is this? We are talking about the chemical properties of alkanes, right? And this is chemical property number 2, and the name of this is free radical substitution reaction. Free radical substitution reaction, right? इससे आप पहले भी familiar हैं, आपने इसको O levels में भी किया हुआ है, but now we are going to do it in a little depth, right? So free radical substitution reaction, you did this in O levels as a substitution reaction of alkanes. I think you are familiar about this. If you talk about any alkanes, right, you are reacting it with any halogens in the presence of UV light, you will have what? Substitution reaction occur, right? If you remember this in your O levels, इस तरह का कुछ आपने reaction किया था. For suppose if I take an example of CH4, this is methane. When I reacted with chlorine, so इसमें क्या होता था? Chlorine just take a place of any one hydrogen, and this hydrogen will take place of this chlorine. And after this reaction, you will say that such substitution occur. The 3 hydrogen carbon bonds are same, right? And one of the bond is replaced by chlorine bond, right? And the carbon hydrogen bond breaks and the carbon chlorine forms, right? और साथ साथ आपके पास बनता था HCl. Right, this is what the substitution reaction you talk about in your O levels, and this is what the important, you can say that this is very important condition for this reaction. Without UV light, the reaction is not possible, right or not, bacho? We know this as a substitution in our O levels, right? Yes, sir. Now Yes. we are talking about this as free radical substitution. Last time in O levels we did only substitution, right? But this time this is free radical substitution. यानी कि पहले जो हमने किया था वो substitution था, simple कि replacement हो रही थी. But this time we need to know about this कि ये जो substitution होगी ये होगी free radical की वजह से. This is actually the substitution due to free radical. तो आपने देख लिया कि this is substitution, this is simple substitution. आपने देखा कि हाइड्रोजन ने क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर दिया. This is substitution, this is a substitution reaction. But ये हुआ क्यों? ये हुआ किस वजह से बच्चों? This is due to free radical. Now it is very important for you to understand what is free radical means. This is important for you to understand what is free radical means. I'm not telling you the mechanism right now. I just telling you the name, the meaning of the names. I told you what is substitution. Substitution is actually when one element or one species is going to replace the other one. So there is simple substitution. I show you in the form of equation as well, right? If you want to show you in this, you can write in this way as well, that one of the chlorine is going to substitute one of the hydrogen from the molecule, right? So this is also what? Substitution in the molecular formula. Now I am telling you the meaning of the word free radical. What is free radical means? For suppose you have chlorine to chlorine bond. We know that chlorine के अंदर होते हैं 7 electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And इस क्लोरीन में भी कितने होंगे बच्चों? 7 होंगे, राइट? अब इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इन्होंने वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया. इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से उनके पास ये बॉन्ड बन गया. So this is actually chlorine to chlorine single bond, and this is the bond due to 2 electrons, 1 electron from each side, right बच्चों? यह है क्लोरीन मॉलिक्यूल, ऐसी है, ऐसी है बच्चों. फॉर सपोज मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करता हूँ, फॉर सपोज मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करता हूँ, तो इस बॉन्ड का जो एक इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन के पास वापस, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास वापस आ जाए. सो इट विल बी लाइक दिस कि ये बॉन्ड टूटा और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास वापस आ गया और दूसरे वाले का इलेक्ट्रॉन उसके पास वापस आ गया, ठीक है ना? ये इनके पास वापस आ गए. सो दिस इज व्हाट? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. दिस इज व्हाट? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो कि इनके पास वापस आया है. बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर इन पेयर्स, राइट? सो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना, दैट इज नोन एज फ्री रेडिकल. क्या कहलाता है बच्चों? ये कहलाता है फ्री रेडिकल. ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, this is actually known as free radical, and this is highly reactive species. This is highly reactive. ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव हुआ. ये चाहता है कि बस किसी तरह ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया जाए
और फौरन से रिएक्शन हो जाए. Is that clear, every one of you? जी सर. ठीक है भाई. तो इसी तरह आपके पास फ्री रेडिकल सिर्फ इसका नहीं, आपके पास फ्री रेडिकल जो है मीथेन का भी बन सकता है. फॉर सपोज आपके पास ये मीथेन के जो है 4 बॉन्ड्स हैं, और सपोज ये वाला बॉन्ड टूट जाए और उसके बाद आपके पास क्या हो जाए, CH3, it will be different with a lone electron which is unpaired, and also hydrogen with one alone electron, individual electron or unpaired electron. So they both are CH3 radical and this is hydrogen radical. तो bond break होने के बाद ये radical बन सकते हैं. And we have one more thing in our syllabus which is fission. This is what? This is fission, the type of bond breakage, right? The fission. This is what? This is homolytic fission, right? You can say that the type of breakage. This is what? Homolysis. This is what? Homolysis, or you can even call this as homolytical fission, right? Which type of fission is this? This is actually the bond breakage. This is actually the bond breakage. So you can say that a covalent bond breaks, a covalent bond breaks and distribute electron equally and distribute electrons equally. This type of breakage is known as homolysis. जब भी आपके पास बॉन्ड टूटे और इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, this type of breakage is known as homolysis or homolytical fission. Is that clear, बच्चों? Clear, बच्चों? Yes, sir. ठीक है. अच्छा देखिए, Yes, मैंने sir. अभी तक मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया है टॉपिक का. मैंने अभी तक आपको कुछ नहीं बताया है. आई जस्ट टोल्ड यू दैट फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन क्या होता है. Substitution is actually when one element replaces the other element, or the atom replaces the other atom, or a group of atoms replaces other group of atoms. So this is actually the substitution reaction, and this is the substitution reaction which is happening right now in alkanes due to the free radical. And what is free radical? Free radical is actually when the bond breaks and equally electrons are distributed in both of the species, right? और इस तरह के बॉन्ड ब्रेकेज को हम होमोलिसिस कहते हैं, और जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको हाइड्रोलिसिस बोलते हैं. ठीक है ना. अभी राइट नाउ हम होमोलिसिस की बात करें तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास या हाइड्रोजन के पास या मीथेन के पास आ गया, वो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इट इज हाईली रिएक्टिव, उसको हम फ्री रेडिकल बोलते हैं. तो ये पूरी सब्स्टिट्यूशन जो हम पढ़ेंगे ये फ्री रेडिकल की वजह से होगी. ठीक है. And इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए, it is very necessary to have UV light over there or sunlight. You can call this UV light or sunlight as well. This is the very, you can say that important role over here for the sunlight. अगर sunlight नहीं होगी तो reaction नहीं होगा. And this is a reaction always between alkanes and halogens. Is that clear, every one of you? The introduction of this, right or not? Yes, sir. Now let's move on towards the reaction. कि ये reaction होता कैसे है भाई, ये reaction हुआ कैसे, क्यों हो गया, ये कब हो गया, कैसे हो गया. So let's talk about mechanism. So this is actually the number one mechanism of your organic chemistry. This is mechanism number one of organic chemistry. And right now we are talking about the mechanism of free radical substitution reaction. The free radical substitution reaction. This reaction is always occur between alkanes and halogens, right? And right now I am taking example of methane reacting with chlorine gas, right? And this reaction is always occur due to the presence of UV light, or you can say that due to the presence of sunlight, or even you need to provide temperature जो के sunlight के UV light के बराबर होना चाहिए. ठीक है ना. So these are the things that you need to know. Now the important things, right? Now if we are going towards the mechanism, so the mechanism is actually depends on 3 steps. The mechanism is actually depending on 3 steps. The step number 1 is initiation. The step number 1 is initiation, right? Initiation means
start, right? The second step is propagation. The second step is propagation, right? And the propagation means the continuation of this process, right? And the last one is termination, right? The last one is termination, which is actually the end of this process, right? इनिशिएशन मतलब स्टार्ट कराना, और क्योंकि ये रिएक्शन है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये स्टार्ट तभी होगा जब आपके पास फ्री रेडिकल जनरेट होगा. सो इनिशिएशन मींस दिस इज द generation, or you are going to generate free radical, right? You are going to generate free radical, right? So this is free radical generation. यहाँ पर free radical generate होगा. और this is what propagation, the reaction. यहाँ पर होगा reaction due to free radical, reaction due to free radical. यहाँ पर free radical अपना काम दिखाएगा, reaction कराएगा, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, and the free radical. हम यहाँ पर एंड करेंगे फ्री रेडिकल का. यू कैन से दैट हम इसको रिमूव करेंगे प्रोसेस से फ्री रेडिकल को. तो these are 3 steps that you need to know. So let's start the process. For suppose आपके पास एक कंटेनर है, you have a container, right? इस कंटेनर में you have what? In this container we have methane gas, right? In this container we have what? Methane gas. In this container we have methane gas. This is what? Methane gas, right? And also in this container we have chlorine gas, right? In this container we have chlorine gas as well, right? We have chlorine gas as well in this container. And unfortunately the sunlight over there sends some UV lights towards this, right? Sunlight से हमारे पास कुछ UV lights यहाँ तक पहुंच गई जिन्होंने इस रिएक्शन को स्टार्ट करा दिया. एंड दिस इज लाइक द रिएक्शन जो कि होने जा रहा है. आप कहेंगे वाकई ये अनफॉर्चुनेट था कि क्यों चले गए सूरज की रोशनी, क्योंकि ये क्यों हो गया रिएक्शन, राइट? तो सबसे पहले लेट्स सी द इनिशिएशन. इनिशिएशन मतलब जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल. फ्री रेडिकल जनरेट होगा, उसके बाद वो सारा रिएक्शन करने वाला है, राइट? सो सबसे पहले आपके पास क्लोरीन मॉलिक्यूल होमोलाइटिकली ब्रेक हो जाएगा. ब्रेक होने के बाद इट विल जनरेट 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल्स, राइट? आपके पास जो क्लोरीन का बॉन्ड था वो ब्रेक हुआ. एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास, और आपके पास 2 क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स बन गए, राइट बच्चों? राइट? यस सर. अब जो ये फ्री रेडिकल बने हैं बच्चों, ये फ्री रेडिकल जो बन गए हैं, ये फ्री रेडिकल स्टार्ट हो जाएंगे रिएक्शन करने के लिए, भागना दौड़ना शुरू हो जाएंगे. आई टोल्ड यू दैट दे आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आर हाईली रिएक्टिव, सो दे वांट टू रिएक्ट क्विकली. तो जल्दी से रिएक्शन करना चाहेंगे, और जब ये जल्दी से रिएक्शन करना चाहेंगे तो ये चाहेंगे कि किसी ना किसी के साथ फौरन रिएक्शन कर लें. और कंटेनर में वी जस्ट हैव क्लोरीन एंड CH4. हमारे पास 2 ही चीजें हैं कंटेनर में, या तो क्लोरीन है या तो CH4 है. अब क्लोरीन रेडिकल अगर क्लोरीन के पास जाएगा तो मैक्सिमम क्या कर सकता है? मैक्सिमम क्या करेगा? Cl2 में से एक क्लोरीन निकाल कर खुद Cl2 बना लेगा. लेकिन जो दूसरा वाला क्लोरीन रेडिकल है अब वो रेडिकल बन जाएगा, राइट? तो अब इस तरह का रिएक्शन के अलावा क्या कर सकता है? क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ क्लोरीन रेडिकल मिलकर कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ ये कर सकता है, ठीक है ना? और केमिस्ट्री के अंदर बच्चों अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम हो तो वो रिएक्शन माना नहीं जाता, ठीक है ना? तो यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम है, तो whatever the energy release or absorbed during this reaction will be same, और ऐसे कोई रिएक्शन केमिस्ट्री में माना नहीं जाता. तो क्लोरीन रेडिकल क्लोरीन पर अगर अटैक करता भी है तो कोई फायदा नहीं है. द बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ दिस रिएक्शन विल रिमेन सेम. क्लोरीन रेडिकल अभी भी वैसी का वैसी वहीं मौजूद है, और एक और क्लोरीन मॉलिक्यूल तोड़कर दोबारा क्लोरीन मॉलिक्यूल बन गया. There is no net difference, right बच्चों, or not? Right. Now the second possibility is this, that chlorine can attack on CH4. और क्या करे? वो ये करे कि CH4 में से वो क्या करे, आपके पास एक H निकाले और खुद जाकर यहाँ लग जाए, ठीक है ना? और H को रेडिकल बना दे. और एक और पॉसिबिलिटी बच्चों क्या हो सकती है? एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि CH4 क्लोरीन रेडिकल इस पर अटैक करे
और CH4 को रेडिकल बना दे और इसके अंदर से जो H निकले उसके साथ मिलकर HCl बना दे, राइट। ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं या नहीं हो सकती? हो सकती हैं बच्चों। हाँ जी। अब ये जो दो पॉसिबिलिटीज हैं इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी परफेक्ट है? इन दोनों में से जो पॉसिबिलिटी परफेक्ट है वो है ये वाली। Why this? Because this is exothermic reaction and this is endothermic reaction, और केमिस्ट्री में एक्सोथर्मिक रिएक्शन ज्यादा फेवरेबल होते हैं क्योंकि वो एनर्जी रिलीज कर देते हैं, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है, ठीक है ना। जिस प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी वो स्टेबल रहेगी, वो टूट नहीं सकती, ठीक है ना। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है, तो इट इज डिफिकल्ट फॉर द प्रोडक्ट टू रिमेन स्टेबल, राइट, क्योंकि ज्यादा एनर्जी वाली प्रोडक्ट रह नहीं सकती। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस फीजिबल होते हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड बच्चों कि इतनी मेहनत के बाद जो पहला रिएक्शन निकला वो ये निकला, ठीक है भाई। और इससे पहले वाले जो रिएक्शन है दे आर यूजलेस फॉर यू। आई एम जस्ट शोइंग यू कि यार ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, लेकिन ये वाला क्यों हुआ तो मैंने आपको क्लियर बता दिया ये वाला क्यों हुआ। पहला रिएक्शन केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हो नहीं सकता, दूसरा वाला रिएक्शन क्योंकि एंडोथर्मिक इसलिए नहीं हो सकता था। तो फाइनली हमारे पास ये आंसर आया, ये वाला रिएक्शन होना ही है, बनता है, ठीक है ना। अब ये CH3 जो है ये रेडिकल बन गया तो दिस इज हाईली रिएक्टिव। अब ये घूमेगा चारों तरफ तो CH4 से रिएक्शन करेगा, तो डेफिनेटली ये रिएक्शन हो नहीं सकता, तो ये रिएक्शन करेगा क्लोरीन से। अब जाकर क्लोरीन ऐड हो जाएगा इसमें क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सो ये आपके पास ओवरऑल स्टेप 1 हुआ। आप देखें स्टेप प्रोपेगेशन का जो स्टेप है उसके अंदर ये स्टेज 1 कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ये स्टेज 1। इसने देखें क्या हुआ, सबसे पहले मीथेन में से एक H रिमूव हुआ और HCl बन गया। इट इज मस्ट, ये होगा ही होगा। हमेशा क्लोरीन रेडिकल H रेडिकल को निकाल देगा और HCl बनाएगा, और जब ये फ्री रेडिकल बन जाएगा तो ये क्लोरीन मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा और उसके बाद क्लोरीन ऐड होगा। सो यू कैन सी दिस, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया है, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट हो गया है, ठीक है। नाउ अब पॉसिबिलिटी क्लोरीन रेडिकल के पास एक और बन जाती है। एक और रेडिकल के पास क्या पॉसिबिलिटी बन जाती है कि अब बीकर के अंदर एक और चीज मौजूद है which is CH3Cl। तो डेफिनेटली ऊपर वाला रिएक्शन तो हो रहा होगा, बट ये रिएक्शन भी हो सकता है कि क्लोरीन रेडिकल अटैक कर दे किसके ऊपर? CH3Cl के ऊपर। डेफिनेटली इसकी चांसेस कम होंगे लेकिन हो सकता है, ठीक है ना। तो अब जब ये इस पर अटैक करेगा अगेन एक H निकल जाएगा, एक H निकल जाएगा तो ये रेडिकल बन जाएगा और दोबारा से जो H निकलेगा वो क्लोरीन के साथ मिलकर HCl बना लेगा। और जब इसमें से H निकल जाएगा तो इट विल बी हाईली रिएक्टिव। तो ये हाईली रिएक्टिव जाकर किस पर अटैक करेगा? क्लोरीन मॉलिक्यूल पर, एंड अब इसके अंदर क्लोरीन ऐड हो जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? दिस विल बी द स्टेज 2। सर स्टेज 2 दोबारा बता सकते हैं? स्टेज 2 दोबारा बताऊं? जी। बेटा ये हमेशा ऐसा ही होगा, हमेशा ऐसी क्या होगा? हमेशा ऐसी होगा जब भी क्लोरीन रेडिकल अटैक करेगा किसी भी मॉलिक्यूल पर, उसमें से हाइड्रोजन को निकाल देगा। जब हाइड्रोजन निकल जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा कार्बन का, तो फ्री रेडिकल बन जाएगा, और जब हाइड्रोजन निकलेगा ना उसके साथ क्लोरीन मिलकर HCl बना लेगा क्योंकि इट इज मोर एक्सोथर्मिक। अब ये जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब ये Cl जो था वो रेडिकल था, अब वो स्टेबल हो गया, दैट्स फाइन, लेकिन जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकला वो अनस्टेबल हो गया। अब जब वो अनस्टेबल हो गया तो वो क्लोरीन पर अटैक करेगा, जब वो क्लोरीन पर अटैक करेगा तो क्लोरीन को अपने अंदर ऐड कर लेगा। ये हर स्टेज में ऐसी होगा। अब देखिए स्टेज नंबर 3 में क्या होगा? स्टेज नंबर 3 में भी यही होगा। अब आपके पास एक नया मॉलिक्यूल जनरेट हो गया। अब यहाँ पर आप देखें आपके पास CH2Cl2 भी कोई चीज बीकर में आ गई है। अब ये जो चीज आई है इसके ऊपर भी क्लोरीन अटैक कर सकता है। जब इस पर क्लोरीन अटैक करेगा तो इसमें से भी H निकालेगा। जब इसमें से H निकालेगा तो ये रेडिकल बन जाएगा, और जो H निकलेगा उसके साथ मिलकर क्लोरीन बना HCl बना लेगा। अब ये हाईली रिएक्टिव हो गया। जब ये हाईली रिएक्टिव हो गया तो ये किस पर अटैक करेगा? ये क्लोरीन मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा और इसको अपने अंदर क्या कर लेगा बच्चों? ऐड कर लेगा, ठीक है ना। और ये रिएक्शन जब तक चलता रहेगा जब तक कि आपके पास सारे के सारे हाइड्रोजन रिमूव ना हो जाए। Now this is the last stage. You can see this. We have one hydrogen only over here. अब जब इसके ऊपर क्लोरीन रेडिकल अटैक करेगा तो आपके पास क्या बचेगा? CCl3 बचेगा और HCl बन जाएगा। अब ये CCl3 अटैक करेगा क्लोरीन मॉलिक्यूल पर और आपके पास क्या बन जाएगा? CCl4 प्लस क्लोरीन रेडिकल। Is that clear बच्चों?
राइट बच्चों? Yes, sir. अब देखें आपके पास हुआ क्या, दिस इज इनिशिएशन। इनिशिएशन में आपने देखा दिस इज, यहाँ पर फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, मतलब कि ये फ्री रेडिकल बना। पेपर में आपसे पूछ सकता है कि विच स्टेप इज इनिशिएशन, सो यू नीड टू कीप रिमेंबर रिएक्टेंट साइड पर फ्री रेडिकल नहीं है, यहाँ फ्री रेडिकल आ गया है। सो व्हेनेवर यू विल फाइंड फ्री रेडिकल ऑन द प्रोडक्ट साइड ओनली, सो यू विल से दैट कि ये इनिशिएशन है। अब इनिशिएशन हो गया, प्रोपगेशन में देयर इज अ रिएक्शन ड्यू टू फ्री रेडिकल, सो दिस इज अ रिएक्शन ड्यू टू फ्री रेडिकल। यहाँ पर पूरा का पूरा रिएक्शन फ्री रेडिकल के ऊपर बेस्ड कर रहा है। यू कैन सी दिस कि यहाँ पर आपके पास फ्री रेडिकल था, जिसकी वजह से प्रोडक्ट में भी फ्री रेडिकल आया, फिर यहाँ फ्री रेडिकल था तो प्रोडक्ट में भी फ्री रेडिकल आया। तो देखें यहाँ पर जब आपके पास स्टार्ट में ही इवन नंबर नहीं है इलेक्ट्रॉन्स के, आपके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आपके पास कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। जब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है ही नहीं तो आप कुछ भी कर लें, रिएक्शन होता रहेगा बट इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हो सकते, पेयर नहीं बन सकता, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है प्रोसेस में। तो इसी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम था, दूसरे को मिल गया बट इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन कम था, दूसरे को मिल गया बट यहाँ कम हो गया, ठीक है ना। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम था, इसने मॉलिक्यूल बना लिया बट इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कम था, इसने मॉलिक्यूल बना लिया बट इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो ये प्रोसेस पूरा चलता रहा जब तक फ्री रेडिकल वहां मौजूद था, रिएक्शन चलता रहा, राइट। तो प्रोपेगेशन स्टेप को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, ऑन बोथ ऑफ द एंड्स, रिएक्टेंट साइड पे भी प्रोडक्ट साइड पे भी फ्री रेडिकल फाइंड होगा, मतलब आपको नजर आएगा, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों। Now the last step is termination. How can we end the reaction, और reaction end खुद ब खुद भी होगा तो कैसे होगा? So it's all about the ending of free radical. तो free radical का ending कैसे होगी भाई? जब दो free radical आपस में मिलेंगे तो जो odd number है वो खत्म होकर मॉलिक्यूल बन जाएगा। जब मॉलिक्यूल बन जाएगा तो फ्री रेडिकल खत्म हो जाएंगे, फ्री रेडिकल खत्म हो जाएंगे तो उनकी जो उनकी एबिलिटी है फास्ट रिएक्शन करने की वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती रहेगी, रिएक्शन एंड की तरफ जाता रहेगा। सो जस्ट लुक एट ओवर हियर दैट हाउ मेनी फ्री रेडिकल्स वी हैव राइट नाउ। सो वी हैव फर्स्ट क्लोरीन रेडिकल, CH3 रेडिकल, CH2Cl radical, CHCl2 radical, and CCl3 radical. So right now in the overall process we have 5 type of radicals: Cl, CH3, right, and CH2Cl, right, and CHCl2 radical, and we have CCl3 radical. So we have total 5 types of radical in the process, in the whole beaker. So एक radical किसी से भी react कर सकता है। For suppose अगर क्लोरीन रेडिकल से react करेगा तो Cl2 बन जाएगा, क्लोरीन रेडिकल अगर CH3 रेडिकल से react कर लेगा तो ये बन जाएगा CH3Cl। अगर आपके पास क्लोरीन रेडिकल फॉर सपोज CH2Cl रेडिकल से रिएक्ट कर लेगा तो इट विल फॉर्म CH2Cl2, और दूसरों से भी मिल सकता है, अब जगह नहीं है तो इसलिए मैं नहीं लिख रहा। ये देखें आप, CH3 रेडिकल से मिल जाएगा तो क्या बनेगा, CH2Cl। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस प्रोसेस। आप देखें कि आप कर रहे थे रिएक्शन मीथेन का, यू आर डूइंग द रिएक्शन ऑफ मीथेन, there is a substitution reaction, free radical substitution reaction of methane, and during the free radical substitution of methane you will have what, ethane बन गया आपके पास, ठीक है ना। सो उसी रिएक्शन में इथेन की भी फ्री रेडिकल स्टार्ट हो सकती है। सो यू कैन इवन सी दिस कि यार कितना बड़ा रिएक्शन होगा ये, कितनी प्रोपगेशन चल रही होगी इसके अंदर, कितनी दफा ये रिएक्शन हो रहा होंगे। फिर यही CH3 किसी और के साथ भी मिल सकता है, इवन CH3 कैन इवन रिएक्ट विद CH2Cl, तो ये दो रेडिकल आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास CH3 CH2Cl, राइट। इसी तरह CH2Cl जो है मिल सकता है आपस में, तो ये बनाएंगे CH2Cl CH2Cl, ठीक है ना। इसी तरह आपके पास जो है ये CH3 के साथ भी मिल सकता है, तो ये क्या बनाएगा CH3 CHCl2, राइट। और इसी तरह ये भी आपस में मिल सकते हैं, CCl3 आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनेगा C2Cl6, या Cl3 अगर CH3 के साथ मिल जाएगा तो क्या बनेगा आपके पास CH3Cl3, राइट बच्चों। तो कोई सा भी टर्मिनेशन रिएक्शन आप लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर?
Yes, sir. So this is what free radical substitution reaction that you need to remember about this, right? So let's talk about one example question in past papers. If you find one example questions in past papers, you will find like this. उन्होंने equation आपको दी क्या बच्चों? They gave you the equation like when you are reacting C2H6 with chlorine, it will forming what? C2H5Cl along with HCl. They are asking for the mechanism of this reaction for 6 marks. They are asking for the mechanism of this reaction for 6 marks. So what you need to do, you just need to do what? Initiation की heading डालें, start हो जाए. Initiation is what? Initiation is when chlorine is affected by UV light and it will form chlorine free radical, right? Then what happened? There will be propagation, and you need to show the propagation until and unless you will have the product they shown in the equation, right? So you will say that initially C2H6 is attracted by chlorine radical and it will remove one H from there, and the removed H is combined with Cl to form HCl, and this C2H5 is now ready to attack on chlorine. Once it attack on chlorine, it will form what? C2H5Cl and chlorine radical. Now you can see this, but the required products are over here. You have these two products, and you can see this, both the products are from in the stage 1. So you don't need to show the stage number 2 or stage number 3 and 4 and 5 and 6 over here. We know that we have 6 hydrogen over here. So there will be 6 stages, one by one. In every stage, the one hydrogen is going to be removed by chlorine. But we don't need to show every single stage over there because the required product in the final equation is here in the first stage, right? So we just try to end this reaction. So just we need to show one termination equation as well over here. So you can write any one of the equation, but I'm writing the equation for the required product. So when C2H5 radical reacts with chlorine, it will form C2H5Cl. You can even write chlorine radical will give you chlorine gas, or you can even show the formation of butane as well. They can even ask an exam, show the formation of butane. So you can see this, when two C2H5 radicals combine together, they will form butane as well. So these can be like this. You can see this, the name of the stages, 1 mark, 1 mark, 1 mark, and the equations will give you 1 mark. So it will be 6 marks question, right, bacho? Yes, sir. Now this is what? Free radical substitution reaction. Now there is a skill test for you, bacho, and the skill test is what? You need to show me the free radical substitution reaction of C2H6 with bromine gas. Just do it quick, and I want कि आप 6 के 6 स्टेज मुझे करके दिखाएं जल्दी से. Let's start.